To my channel Prime Diamond Academy by Vishal Urade. Friends, last time we see the Gript and Avery MacLeod-McCarthy experiment. Avery MacLeod-McCarthy experiment give the first evidence that DNA is a genetic material, but today we are seeing the most important experiment of Hershey and Chase that will prove that DNA is a genetic material. Okay, we are now starting. Before we are starting this experiment, we know some concept and we will take that. In 1952, two scientists, Alfred Hershey and Martha Chase, give the experiment, and that give the name Hershey and Chase experiment. They use two organisms. One is a E. coli, that is a bacteria, and another is a bacteriophage. Bacteriophage. Remember this word bacteriophage. It is a virus that infects the bacteria. That is called bacteriophage. Here we take it is T2 phase. Now what happened? This bacteriophage is made up of DNA and protein. Now we will prove or we will see where DNA and protein is present in the bacteriophage. I am drawing one diagram of T2 phase. This is a virus with a pentagonal capsid, and here there is a end piece which having the pore, inside it having the protein. Protein is present here. Here there is an end plate, and from end plate it will form like this fiber. We called it as a tail fiber. We called it as a tail fiber. Remember this. This is a tail fiber. This is the capsid. Here there is a DNA. Here there is a protein. This is called as a end plate. And this one is called as a tail fiber. So, this diagram tells us that bacteriophage is made up of DNA and protein. You see, this is a DNA and this is a protein. We have to prove this is a genetic material or DNA is a genetic material. This is a question in front of Hershey and Chase. So, they perform experiment, but you get what is bacteriophage. आपको समझ में आ गया T2 phase क्या है? तो 1952 में हर्शे और चेस ने ई कोलाई बैक्टीरिया पे बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करवा के हमें प्रूफ करवाया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. प्रूफ करवाया. सो ये ध्यान में रहे, इस डायग्राम में मुझे दिख रहा है कि कैप्सिड है, डीएनए है बीच में, प्रोटीन है, एंड प्लेट है और टेल फाइबर होता है. अब हम देखेंगे इन्फेक्ट कैसे करवाता है. इसकी 4 प्रोसेस होती है इन्फेक्शन करवाने के लिए. एज इन्फेक्शन इज डन बाय 3 प्रोसेस. One is called as the adsorption. Second is called as the infection. Okay, infection. Third one is called as a replication. And last one is called as a lysis. I am describing this process. Adsorption. Adsorption means what happened? Suppose this is a E. coli bacteria. This virus attach it like this. You know the diagram, and it when attached, this process is called as adsorption. When it give only DNA will enter inside the E. coli. This part remain outside, and now we call as a ghost. इसे हम ghost माने भूत. इसे हम भूत कहते हैं क्योंकि ये अंदर ही नहीं जा पाता. DNA अंदर जाता है, अभी हमें पता है, लेकिन तभी पता नहीं था. तो ये पता था कि वायरस का ये जो पार्ट है जिसको हम सुपरनेटेंट कहेंगे ये बाहर होता है. रिप्लिकेशन का मतलब डीएनए एक के ज्यादा हो गए. और लाइसिस मीन्स व्हेन दे ऑल फॉर्म द वायरस इनसाइड द बैक्टीरिया, दे ऑल कम्स आउट बाय ब्रस्टिंग द बैक्टीरिया. देयरफॉर इस प्रोसेस का नाम है लाइसिस. तो ये हमारे ध्यान में आना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज ये वायरस है, ये दिखता कैसे है, ये इन्फेक्ट कैसे करवाता, और इन्फेक्शन के बाद कौन अंदर जाता है, डीएनए या प्रोटीन. ये प्रूफ करवाना था हर्शे एंड चेस, और उसी के लिए आज का एक्सपेरिमेंट आपके सामने मैं यहाँ पे बता रहा हूं.
तो आगे हम ध्यान देंगे। अभी सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है या ध्यान में रखिए कि वायरस ये अकेला नहीं रह पाता, इसे कोई ना कोई मीडियम होना है, लिविंग मीडियम होना चाहिए, तभी ये रहेगा, नहीं तो ये रह नहीं सकता। इसीलिए हार्शे और चेस ने T2 फेज को दो मीडियम ली, लिए। इस मीडियम के अंदर T2 फेज, इस मीडियम में फास्फोरस को रेडियोएक्टिव रखा है। रेडियोएक्टिव आपको पता है, तो रेडियोएक्टिव फास्फोरस 32 है और सल्फर रेडियोएक्टिव 35 है। ये ध्यान में रहे, क्योंकि अगर डीएनए में हम देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फोरस है, इसका मतलब डीएनए में फास्फोरस रहता है। लेकिन ने लिखा है कि ये S35 दो प्रोटीन में होता है, एक का नाम होता है सिस्टीन और दूसरे का नाम होता है मिथियोनाइन। रिमेंबर, these are the two amino acids which our body is made up of 20 amino acid. Out of these two are very important and these are present in this protein that is called as a capsid protein or just be called as a protein. ओके, इसके अंदर सिस्टीन और मिथेनॉइन है, इसके अंदर सल्फर है, इस वजह से इन लोगों ने S35 एज अ रेडियोएक्टिव लिया और डीएनए के अंदर फास्फोरस है एज अ P32। मैंने पहले ही कहा वायरस अकेला नहीं रह पाता, इस वजह से ये डीएनए के ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हम इसे बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरिया लिए हैं हमने और इनका मीडियम यहां पे लगवाया है। मीडियम लगने के बाद कुछ देरी के बाद इन्हें सेंट्रीफ्यूज करवाया। सेंट्रीफ्यूज करवाने के बाद ऐसा पता लगा एज सेल हेवी होते हैं, एज सेल्स आर हेवी देयरफॉर सेल नीचे चले गए, बैक्टीरिया ई कोलाई नीचे चले गया और ये जो कैप है, मैंने पहले ही कहा कैप अंदर नहीं जाती है, इसलिए ये जो कैप्सिड है ये ऊपर रह गए। ये ध्यान में रहे। सेकंड पार्ट में भी वैसे ही हुआ, यहां पे पूरे बैक्टीरिया चले गए नीचे और ऊपर की साइड में आप देख रहे हो यहां पे कैप्सिड है, जो अब इनके नाम भी रखे हैं। इस कैप्सिड को एक नाम है, आप बराबर ध्यान देंगे, इस कैप्सिड का नाम हम रखते हैं सुपरनैटेंट। ध्यान में रहे, आपके बुक में सुपरनैटेंट वर्ड आने वाला है। सुपरनैटेंट माने ये ऊपर का पार्ट जिसमें कैप्सिड है और जो नीचे का पार्ट है इसे हम पैलेट कहते हैं। व्हाट वी कॉल्ड पैलेट। ध्यान में रहे, पैलेट। ओके, दिस इज अ पैलेट and this is a supernatant. What is pellet? Pellet is a bacteria. They are heavy, so they come at the base, and the capsid, they are lighter, so they are floating on it. Therefore it is called as a supernatant. तो जब उन्होंने चेक किया तो ये सुपरनेटेंट में क्योंकि मैंने पहले कहा था यहाँ पे P32 यूज किया और इस साइड में S35 यूज किया, तो उन्होंने देखा कि सुपरनेटेंट में जब देखा तो यहां पे कोई रेडियोएक्टिव नहीं है, नो रेडियोएक्टिव। लेकिन नीचे में जब उन्होंने देखा तो एज हियर देयर इज अ डीएनए, क्योंकि सेल है तो डीएनए होगा अंदर, तो यहां पे उन्हें दिखाई दिया कि P32 पूरे के पूरे जो सेल है ये P32 है। इसका मतलब P फास्फोरस ये डीएनए के अंदर होता है और डीएनए किसके अंदर है? डीएनए होता है सेल के अंदर। देयरफॉर P32 ये इन्हें सेल के अंदर मिला। और अदर साइड में अगर आप लोग देखोगे तो सुपरनेटेंट में मिला सल्फर, एज इट इज अ प्रोटीन, सो ये सुपरनेटेंट में मिला है S35। और नीचे में कोई फास्फोरस नहीं, कोई सल्फर नहीं, नॉर्मल सेल मिले, नॉर्मल सेल।
इससे प्रूफ होता है, नॉर्मल सेल मिले हुए, इससे प्रूफ हुआ है कि डीएनए इट इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो बाहर निकल गए, डीएनए अंदर गए, अंदर के डीएनए नॉर्मल है, यहाँ पे डीएनए P32 है, और इस तरह से प्रूफ हुआ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ गया? तो इस तरह से P32 के लेने के बाद रेडियो एक्टिव, ये जो नीचे का पैलेट है इट बिकम 32 एंड P32 एंड सुपरनेटेंट ऑन द S35 साइड इट बिकम S35। देयरफॉर ये प्रूफ हुआ कि सेल जो है वो रेडियो एक्टिव मिले, इसका मतलब डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। और ये लास्ट प्रूफ है, क्योंकि बाद में हम थ्योरी के और जाने वाले हैं। देयरफॉर इट इज अ लास्ट प्रूफ of that DNA is a genetic material. So friend, if you like this video, you just subscribe it.